Hey, uh, so easy day today. Basically opened as I had mentioned on Friday's post market. If you're watching my post market, I had mentioned that I was looking for an flat move opening or a gap up. Wasn't Did not really have a plan for a gap down, and it did not gap down. It opened flat, and my plan was to short when Nifty comes around 570 550 levels. So the high I think was 540 and the future high was around 570. So yeah, a good shot if you are following my post market. And so yep, and also if you probably clearly listen to the target, which was basically this break, 250 break. So a little unhappy that I couldn't really capture all of this, but this was good enough from 500 levels. So yeah, a good opening. Now the sad part is I couldn't really trade Bank Nifty because Bank Nifty had a bearish structure in the morning, and I wouldn't really go bullish on. I would probably discuss this on all mostly on my post market. If there is a bearish down volume in the morning, don't go. If you don't want to short, don't go long till this is broken with good volumes. So yeah, uh, and I think it gave very good shorting opportunity with a very good RR. Look at this near your highs, right? Consolidation and then beautiful move towards the downside, which was the expectation once you had an up move in the morning. I was really expecting this on Friday. I had mentioned this in my post market, but it came today in the morning. Now, what was my idea which I posted on my channel? Basically, I wanted this to come around VWAP levels 450 Nifty future 17450 17470 by 1 o'clock, and I was looking for a short. So this was the idea, though I was expecting short till 215, and it did, but I wanted this to come above or around VWAP, or even around say 12 o'clock high, or break 12 o'clock high. That was the idea. That did not happen, so did not take this trade because I didn't really want to get into a trade where I'm already positive. What I did was I did some scalping at the end. I lost. The scalping was to do a reversal. If did not keep my stop loss, I would have uh, come out in profit. But once I saw consolidation here, I wanted an up move towards VWAP, though it was already almost 3 o'clock. So bad trade. Uh, but I had profits, and the risk was around 20-25 points in Nifty, and the target was almost more than 100 points. So the RR was really good, but my stop loss got hit, and it came off. So that's fine. Yeah, Bank Nifty. So what am I thinking tomorrow? Same. I don't think this is the bottom. I don't see any defending happening at the lower levels. So I'm not really convinced that this is the bottom. So, but I won't really short here. I want some up moves. So I'm expecting a gap up tomorrow. Let's see. If it gap ups, I will again look for shorting opportunities. And I think this week some consolidation also may happen. So it won't really fall like this all the time. So be a little careful in terms of buying options. I bought options when the VIX was around 12, 13. Right now the VIX has I think today gone to 16. So if a couple of days consolidation comes in, and uh, I think the VIX will drop. So be a little careful buying options. But yeah, I don't really want to short here, but I'm not still in the zone where I think that this is the bottom. I think we still have more down moves to be made here in Nifty. So let's see. बैंक निफ्टी पहले फ्राइडे का पोस्ट मार्केट देखते हैं. फ्राइडे मैंने बोला था कि अगर दो ऑप्शन थे, अगर गैप अप होता है या अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मैंने लेवल्स भी बताए हैं. 540 से लेकर 550 बोला था शायद, 550 से लेकर 570 के बीच में मैं शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये उसका वो गैप था. और ये यहाँ से 540 से रिवर्स हो गया, 530 से रिवर्स हो गया,
तो मैं तो अंदर था शॉर्ट में, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था शॉर्ट्स में, क्योंकि मैं चाहता था ये, मैंने अपने, अगर मेरा फ्राइडे का पोस्ट मार्केट देखा आपने, मैं चाहता था ये 250 टूटे, पर मैं ये नीचे का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो थोड़ा दुख तो होता है कि पूरा बुक नहीं किया मैंने, लेकिन तब भी बहुत अच्छा ट्रेड था ये। और दूसरा दुख ये था कि मैंने बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करी। बैंक निफ्टी में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर है शॉर्टिंग का। डाउन मूव आई है, निफ्टी में कोई वॉल्यूम्स नहीं थी डाउन मूव सुबह। ये तो मोस्टली इतना वो नहीं होता, ट्रस्टवर्दी नहीं होता ये वाला डाउन मूव, लेकिन ये जो सुबह सुबह जो डाउन मूव्स आती हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी रहते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। तो ये बेसिकली अगर आपको शॉर्ट नहीं करना मार्केट को तो आप लॉन्ग तो मत करिए जब तक ये टूटता नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर है ये, मैंने फ्राइडे को भी ये समझाया है और भी बहुत सारे पोस्ट मार्केट वीडियोज़ में समझाया है मैंने। फ्राइडे को ये स्ट्रक्चर आया था निफ्टी में जहाँ पर ये बाय का बना था, और अगर आप देख रहे हैं तो इसने ये तोड़ दिया। तो मैंने ये भी बोला था कि जब तक ये नहीं टूटता आप सेल मत करिए, और जैसे ही ये टूटा देखिए क्या हुआ। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था शॉर्टिंग का। अगर किसी ने यहाँ पर लॉन्ग किया है एटलीस्ट 2 बजे से पहले, तो वो मेरे ख्याल से इसको बेसिक्स समझना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें 3 मिनट्स में तो काफ़ी लोअर हाइज लोअर लोइज बना रहा था निफ्टी, तो पता नहीं क्यों कोई इसको लॉन्ग करेगा। तो अब ये अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ये भी बोला था फ्राइडे के वीडियो में कि ये 250 टूटना चाहिए, और वो भी टूटा। तो वो एक टारगेट हो गया है, लेकिन मैं ये अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी कोई वॉल्यूम्स नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ जब ये गिर रहे हैं। तो अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये बॉटम है। तो देखते हैं क्या होता है, पर मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल गैप अप हो, अगर गैप अप होता है तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा वापस। कौन से लेवल पे देखूँगा, इसी के आसपास 450 के आसपास, 17450 निफ्टी 50 के आसपास। क्या पता उसके ऊपर भी जाए, पर यहाँ पर मैं शॉर्टिंग करूँगा नहीं, मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा, देखते हैं क्या होता है। आज का तो जैसे मैंने बोला सिंपल स्ट्रक्चर था बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग करने के लिए, और निफ्टी में भी क्या आइडिया पोस्ट किया था मैंने, जो हर दिन मैं पोस्ट करता हूँ अपने चैनल पे। आज का आइडिया ये था कि अगर 1 o'clock तक वीवैप के आसपास या 17450 से 17470 के बीच में आता है तो मैं शॉर्ट देखूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा 511। मुझे यहाँ पे इसलिए शॉर्ट नहीं लेना था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत हाई था, इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा तो ऊपर आए ताकि मैं इसको शॉर्ट कर सकूँ। क्योंकि एक भी अगर कैंडल रिवर्स कर जाए तो पूरा आपका आरआर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए और ऊपर से सिस्टम का विजुअल ये था, तो इसमें ही था ही, मुझे पता था कि 215 तक लो बनाएगा, लेकिन मैं यही चाहता था कि ये चीज़ हो, ये चीज़ नहीं भी यहाँ पर, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैंने लास्ट में थोड़ा स्टंटबाजी करी क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट्स थे, तो अपना जितना मेरे को रिस्क दे सकता था मैंने यहाँ पर। एक बहुत अच्छा आरआर था। ये कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पे, और आरआर था शायद 20-25 पॉइंट्स का, 253 क्लॉक हो गया था। मैं एक्सपेक्ट तो मैं वीवैप कर रहा था, लेकिन अगर वीवैप नहीं भी चाहता तो भी, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल कर रहा था इसमें, तो प्रीमियम्स ड्रॉप होते, ऐसा मेरा अजम्पशन था। पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस डीलो था, और स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं रखता तो मैं प्रॉफिट में निकलता, पर मैं स्टॉप लॉस ऐसा होता नहीं है कभी, मैं नहीं रखता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉस में निकला। पर ठीक है, मैंने काफ़ी कमाया सुबह, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट मार्केट में भी शेयर किया था। अगर आपने मेरा पोस्ट मार्केट देखा है तो आप इस लेवल्स पे आराम से हीरो ज़ीरो पुट ले सकते थे अगर आपको फ्यूचर नहीं करना है तो। ये लेवल भी मैंने बताया और मैंने टारगेट भी बताया फ्राइडे के वीडियो में, पोस्ट मार्केट वीडियो में। मेरे ख्याल से 120 के आसपास, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे फ्राइडे को 120 इंग्लिश वर्जन में, तो आपको दिख जाएगा कि मैंने ये तो लेवल्स तो बताया, टारगेट शायद मैंने उसके पहले बताया है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये टूटेगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी मैंने बोला है कि ये ऊपर आएगा, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टूटेगा, और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बॉटम नहीं है, पर मैं इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करूँगा। थैंक यू।